ठीक है, लेसन नंबर 9 है हमारे पास रीडिंग डिस्क्रिप्शन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि पहले एक पैराग्राफ या फिर हमें एक जो डॉक्यूमेंट दिया जाए तो उस तरह मतलब उस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है, उसके बाद उसमें से डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है और उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन लोकेट करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ है। ठीक है, in this lesson, we will read a text and then solve exercises based on the text. These exercises will again emphasize and improve your reading comprehension abilities. ठीक है, अब हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, रीड करते हैं इसको। When you read the following text, remember to try and understand the meaning of few words and expressions from the context. Don't check new word in the dictionary until you have read the whole text. ठीक है, those words in bold typeface are explained in the glossary at the end of the book. ठीक है, उन्होंने जो दिए हुए हैं वर्ड बोल्ड किए हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द बुक जो है उनका एज ए ग्लोसरी दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम बाद में देख सकते हैं। तो पैराग्राफ है हमारे पास, कंप्यूटर्स आर मशीन डिजाइन टू प्रोसेस इलेक्ट्रिकली specially prepared pieces of information which are termed as data. Handling or manipulating the information that has been given to the computer in such ways as doing calculations, adding information or making comparisons is called processing. ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा याद रखना है कि किस पैराग्राफ में किस चीज की बात की गई है। अब देखें, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोसेसिंग की बात की गई है कि डाटा प्रोसेस कैसे होता है कंप्यूटर में। Computers are made up of millions of electronic devices capable of storing data or moving them at enormous speed through complex circuits with different functions. ठीक है, यहाँ पे डाटा को प्रोसेस करने की ही बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने पूछे हैं ये क्वेश्चन, आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। All computers have several characteristics in common regardless of design. Information in the form of instruction and data is given to the machine, after which the machine acts on it and result in then shown. The information presented in the machine is the input. देखें यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट बात हुई थी डाटा प्रोसेस करने की, अब यहाँ पे मजीद बात हो रही है इनपुट और आउटपुट की, डाटा प्रोसेस करने के। The internal manipulative operations, the processing and the result, the output. These three basic concepts of input, processing and output occur in almost every aspect of human life, whether at work or at play. For example, in clothing information, the input is the pieces of cut cloth, the processing is the sewing together of these pieces, and the output is the finished garment. ठीक है, कोई भी फील्ड हो, डॉक्यूमेंट लिखना हो या जिंदगी की कोई भी फील्ड हो, उसके ये जो तीन मेन जो है वो फंक्शंस होते हैं, एक इनपुट, फिर क्या होता है डाटा प्रोसेस होता है और उसके बाद उसका आउटपुट। ठीक है, इनपुट, कंप्यूटर और फिर आउटपुट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, पैराग्राफ जस्ट रीड करने की बजाय, बल्कि मैं पैराग्राफ नंबर 4 भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कंप्यूटर्स हैव ऑफन बीन थॉट ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज एडिंग मशीन्स, बट दिस इज अ वेरी नैरो व्यू। हाँ जी शामिर, view of their function. Although a computer can only respond to the certain number of instructions, it is not a single purpose machine, since these instructions can be compiled in infinite number of sequences. Therefore, a computer has no known limit on the kinds of things it can do. Its versatility is limited only to the imagination of those who use it. ठीक है, चाहिए तो ये था कि आप ये पैराग्राफ वगैरह रीड खुद कर लेते हैं, लेकिन जस्ट टू रह गया, मैं रीड कर देती हूँ। In the late 1950s and early 1960s, when electronic computers in the use today were being developed, they were very expensive to own and run. ठीक है, ये क्लास में भी मैंने बात डिस्कस की थी कि अगर 19 और 16 में जो थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ तो गए थे, लेकिन क्या था कि बहुत ज्यादा महंगे थे, एक्सपेंसिव थे to run. Moreover, their size and reliability were developed were such that a large number of support personnel were needed to keep the equipment operating. This has all changed now that computing power has become portable, more compact and cheaper. हाँ जी शमीर, लेसन नंबर 9 है।
ठीक है. In the only a very short period of time, computers have greatly changed the way in which many kinds of work are performed. Computers can remove many of routine and boring tasks from our lives, thereby giving us more time for interesting, creative work. It goes without saying that computers have created whole new areas of work that did not exist before their development. ठीक है. अब ये कंप्यूटर के बारे में जो डिफरेंट उन्होंने पैसेजेस हमें दिए हैं, नेक्स्ट वो पूछेंगे कि किस पैसेज का कौन सा जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उसका मेन आइडिया हो सकती है. मेन आइडिया मैंने आपको बताया था कि कैसे सर्च करते हैं किसी पैराग्राफ से. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि मेन आइडिया विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है. Why did you eliminate the other choices? अगर इनमें से एक या एक से ज्यादा जो है वो मेन आइडिया हो सकती है स्टेटमेंट, तो वो पूछ रहा है कि जो नहीं हो सकती वो क्यों नहीं हो सकती. बताएं कोई कौन सा इसका मेन आइडिया हो सकता है. कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच वी लिव. All computers have an input, a processor, an output, a storage device. Computers have decreased man's workload. All computers have same basic hardware components. क्या हाल है, कौन सा इसका मेन आइडिया हो सकता है. बिल्कुल आपने हैंडआउट्स खोले हुए हैं. ठीक है. इसका मेन आइडिया यही होगा कि कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच वी लिव. इसमें डिटेल से थोड़ा बताया हुआ है. और कंप्यूटर्स हैव डिक्रीज द मैन वर्कलोड. ठीक है. अगर हम फुल डॉक्यूमेंट की बात करें जो तमाम पैसेजेस हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे यहाँ तक था मेन आइडिया. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. Decide whether the following statements are true or false by referring to the information given in the text. Then make the necessary changes to the false statement become true. ठीक है. कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ठीक है और कौन सी गलत है. All information to be processed must be prepared in such a way that the computers will understand it. क्या हाल है. हाँ जी लगाएं, इसका भी कोई तुक्का लगाएं. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. All information to be processed must be prepared in such a way that computer will understand it. ऐसा नहीं है कि तुम हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है हमें ऐसे ही प्रोसेस करनी चाहिए कि कंप्यूटर उसकी लैंग्वेज को समझ जाए. क्या ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है. जी क्लियर हुआ इसका. ऑल इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट द कंप्यूटर्स विल अंडरस्टैंड इट. बिल्कुल ऐसा ही है. इट्स ट्रू. Because of the complex electronic circuitry of a computer, data can either be stored or moved about a high speeds. क्या ऐसा है. कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की वजह से क्या कंप्यूटर का जो डाटा है वो या तो स्टोर हो जाता है या फिर मूव हो जाता है अबाउट अ हाई स्पीड्स. It's true. Not all computers can process data given to them and produce results. ये true है कि false है. Not all computers can process data given to them and produce results.
सारे कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकते? सारे कंप्यूटर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। हमने पैराग्राफ नंबर आई थिंक 3 में पढ़ा है कि तमाम कंप्यूटर जो है वो उनके पास इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट होता है, वो रिजल्ट जो है शो कर देते हैं। The basic concepts of data processing are restricted to computer alone. ऐसा ही है। The basic concepts of data processing are restricted to computers alone. क्या ख्याल है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? नेक्स्ट हमारे पास है, the processor is the central component of a computer system. प्रोसेसर होता है सेंट्रल कंपोनेंट। बिल्कुल, ये भी ट्रू है। सेंट्रल सीपीयू जो है वो सेंट्रल जो है वो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ऑल अदर डिवाइसेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर अटैच्ड टू द सीपीयू, ये भी ट्रू है। मेमोरी डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी डिवाइसेस जो है वो भी इसीलिए यूज की जाती हैं। कंप्यूटर्स आर वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड इन द वे दे कैन डू, इन व्हाट दे कैन डू, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जस्ट जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाती है वही वो रिजल्ट उसी का शो कर सकते हैं। कंप्यूटर्स टुडे कॉस्ट लेस, आर स्मॉलर एंड नीड फ्यूअर पीपल टू ऑपरेट देम देन इन द पास्ट। आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो कॉस्ट लेस, इतने महंगे भी नहीं है जितना कि पहले थे, एंड स्मॉलर और साइज भी छोटे हैं, एंड नीड फ्यूअर पीपल टू ऑपरेट देम, बिल्कुल ऐसा ही है। आज के दौर में जो कंप्यूटर चलाना वो इजी है देन इन द पास्ट, ठीक है, ये भी ट्रू है। कंप्यूटर हैजंट चेंज आवर वर्किंग कंडीशंस वेरी मच, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया हुआ है हमारा वर्किंग सिस्टम जो है, सो इट्स फॉल्स। Locating information, find the passages in the text where the following ideas are expressed given the paragraph reference, ठीक है, ये आपने देखना है कि अब ये हमने किस पैराग्राफ में कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी है। All computers are basically the same, किसी को पता है कि ये स्टेटमेंट हमने किस पैराग्राफ में पढ़ी है, किस पैसेज में पढ़ी है? आई थिंक सेकंड पैसेज में हमने पढ़ा है कि तमाम कंप्यूटर जो है वो सेम होते हैं और उनका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो भी सेम होता है। आवाज कम आ रही है मेरी? ठीक है, अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, देन अरिथमेटिक एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ये स्टेटमेंट देखें किस पैसेज में हमने पढ़ी है? ठीक है, फिर देखें ये स्टेटमेंट जो है ये किस पैराग्राफ में थी? Then arithmetic and decision making operations are performed. I think passage number 3 में है। ठीक है, पैसेज नंबर 3 में इसको थोड़ा सा इस तरह दिया हुआ है, द टर्म कंप्यूटर इंक्लूड्स दोज पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर इन व्हिच कैलकुलेशंस एंड अदर डाटा मैनिपुलेशंस आर परफॉर्म्ड। सो किसी भी किस्म का कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म होने की बात है वो पैसेज नंबर 3 में की गई है। कंप्यूटर्स आर लिमिटेड बाय मैन्स इमेजिनेशन मोर देन एनीथिंग एल्स।
ये किस पैसेज में से है? स्टूडेंट्स आप एक दफा ना पहले पढ़ लिया करें इसको, ताकि आप लोग जो है वो मुझे कोई जवाब दे सकें। मकसद तो उनका जस्ट ये है कि हमने पैसेज जो है वो रीड कर लिए, हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस पैसेज में कौन सी बात हुई है, कहाँ प्रोसेस डाटा प्रोसेस करने की बात हुई है, कहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, और कहाँ पे ये बताया कि जो आज के कंप्यूटर है वो कॉस्टलेस है और जो है स्मॉलर है पास्ट की निस्बत, ठीक है। और अब हमारा मेन मकसद ये है कि हमने इसमें से सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से देखना है कि डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हमें मिल रही है, जो पैसेजेस हैं, जो टेक्स्ट है, उनमें से हमने क्या करना है कि इंफॉर्मेशन लोकेट करनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है किस पैसेज में है। तो ये सेम स्टेटमेंट्स तो नहीं होंगी, आपको कहीं भी सेम स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगी, उन्होंने थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके यहाँ दिया हुआ है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन जो है वो किस पैसेज में है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन ये है कि कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस किस पैसेज में है। लुक बैक एट द नेक्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट द वर्ड्स इन बोल्ड टाइपफेस रेफर टू, विच आर टर्म्ड डाटा। अब विच जो है ये बोल्ड प्रीफेस है हमारे पास कि ये जो टेक्स्ट में है ये किस वर्ड की तरफ इशारा है। जैसा मैंने आपको कल पढ़ाया था कनेक्टिव वर्ड्स में, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर हम अरसलान की बात कर रहे हैं तो उसके लिए नेक्स्ट हम जो जो वर्ड यूज करेंगे, ही इज हिम या ये वो, तो वो जो है वो किसकी तरफ हमें किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अरसलान की तरफ। इसी तरह हमने बताना है कि हमने जो कंप्यूटर के रिलेटेड पैसेजेस पढ़े हैं उनमें से कहाँ किस चीज के लिए विच यूज हुआ है, किस चीज के लिए देम यूज हुआ है, इस तरह से द मशीन एक्ट्स ऑन इट ये कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको समझ तो आ गई होगी। अब हम अगर यहाँ पे इसको ना भी डिस्कस करें या फिर लोकेट ना भी करें पैसेजेस में से, ठीक है। कहीं जहाँ ये देम यूज हुआ है, आई थिंक ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हुआ है और मूविंग देम, कहीं ये कंप्यूटर की बात हुई है और कहीं उसके किसी न किसी प्रोसेस की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिमस। हमारे पास कौन कौन से सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी कि उनके सिमिलर मीनिंग है। फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, कॉल, ट्रिमेंडियस, आइडियाज, रिएक्ट, टेक अवे, इनको गूगल करें, इनके हजारों और मतलब मिल सकते हैं, ठीक है। कॉल अगर बुलाना है तो कॉल आउट हो सकता है, ट्रिमेंडियस बहुत ज्यादा है, वेरी मच हो सकता है, आइडियाज हैं तो इमेजिनेशन हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, रिएक्ट है किसी का रिएक्शन है, तो इसके भी और भी डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, या फिर रिजल्ट कह सकते हैं आप, आउटपुट कह सकते हैं, ठीक है। नाउ रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हमारे के जो हम मीनिंग यहाँ वर्ड्स यूज हुए हैं टेक्स्ट में, पैसेजेस में, तो उनके मुखालिफ वर्ड कौन से होंगे, ठीक है। टेकन अवे किसी चीज को ले जाना, तो टू गेट किसी चीज को वापस ले आना। अगर वाइड की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए स्मॉल का वर्ड यूज कर लेंगे। लिमिटेड है तो अनलिमिटेड, इमूवेबल है तो जाहिर है मूवेबल, आफ्टर है तो बिफोर, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट में से सर्च करना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है। Word forms, first choose the appropriate form of the words to complete the following sentences, then check the difference of meaning in your dictionary. Imagination, imagine, imaginable, imaginative, imaginary. A computer is limited on its ability by the, यहाँ कौन सा word use होगा, imagination of man, ठीक है। Some people are good at inventing, यहाँ कौन सा word use होगा। देखें जस्ट उन्होंने कॉमन सेंस की बात की हुई है, अगर मैं ही आपको पढ़ाती रहूंगी तो ये बात तो ठीक नहीं, कोई आप भी रिप्लाई कर दिया करें, मैसेज कर मुझे चैट में बताएं अगर किसी को समझ आ रही है तो।
सम पीपल आर गुड एट इन्वेंटिंग, यहाँ पे इमेजिनेशन स्टोरीज तो नहीं आएगा. सम पीपल आर गुड एट इन्वेंटिंग इमेजिनेटिव स्टोरीज. It is practically impossible to dash the speed at which a computer calculates numbers. ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? उन्होंने वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक वर्ड जो है वो यूज होना है. It is practically impossible to imagine the speed at which a computer calculate numbers. क्लियर है? फर्स्ट में इमेजिनेशन यूज होगा, सेकंड में इमेजिनेटिव एंड थर्ड में इमेजिन. चलिए, किसी का मैसेज ये तो आया कि क्लियर है. नेक्स्ट आप खुद भी सॉल्व करें ना स्टूडेंट्स का, मुझे पता चले कि कोई देख रहा है. एडिशन, एड, एडिड, एडिशनल, एडिशनल, एडिटिव. ठीक है, अब यहाँ पे यूज करने हैं. मेनी टर्मिनल्स कैन बी डैश टू अ बेसिक सिस्टम इफ द नीड अराइजेस. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा इन वर्ड्स में से? हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ड यूज होगा? मेनी टर्मिनल्स कैन बी डैश टू अ बेसिक सिस्टम इफ द नीड अराइजेस. अगर जरूरत पड़ जाए तो हम जो है ज्यादा टर्मिनल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ड है? मेनी टर्मिनल्स कैन बी एडिड. मजीद टर्मिनल ऐड हो सकते हैं, कैन बी एडिड. डैश एंड सब्सट्रैक्शन इज टू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन. यहाँ पे क्या यूज होगा? Addition and subtraction. When buying a system, there is often no dash charge for the programs. Additional charge होगा. ठीक है, समझ आ गई है? स्टूडेंट्स क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटिंग. ठीक है, देयर कैन बी मैनी डैश इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ कंप्यूटर इन अ ओल्ड बिल्डिंग. ठीक है, क्या हो सकता है? मैनी. कॉम्प्लिकेटिंग तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे यूज होगा कॉम्प्लिकेशंस. It is sometimes a very dash process getting into a computer installation for security reasons. यहाँ क्या यूज होगा? complicated. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है. कंटेंट रिव्यू है. ट्राई टू थिंक ऑफ अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ दीज आइटम्स बिफोर चेकिंग देम इन द ग्लोसरी, देन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वजीहा नूर, क्या इशू है आपके माउस के साथ? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स. ठीक है, सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड मोर देन वंस. मेक श्योर यू यूज द करेक्ट फॉर्म, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल. ये अब अपने पैसेजेस को खुद को रीड करके फिर ही देखना है इसको, क्योंकि अब सारा तो मैं करवा नहीं सकती. क्लास एंड होने में जस्ट 4 to 5 मिनट है. मैं आपको थोड़ा प्रिसाइजली बता देती हूँ सारा किस लेसन में है क्या क्या था. ठीक है, वैसे समझ आ गई है? 3-4 जो क्वेश्चन थे ट्रू फॉल्स की आपको समझ आ गई है, मैंने सारे करवा दिए हैं खुद. उसके बाद ये कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं, और उसके बाद ये फिर वर्ड्स थे जो हमने अप्रोप्रिएट जो थी उस जगह पे रखने थे, वो वर्ड्स भी हो गए हैं. क्लियर है ये लेसन? समझ आ गई है किस तरह से किसी टेक्स्ट को रीड करके उसमें से लोकेशन कैसे, मतलब उसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे लोकेट की जा सकती है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किस पैराग्राफ से, किस पैसेज से आई है, उसके बाद कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, सिनोनिमस जो यूज हुए हैं, मतलब जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनकी जगह कौन कौन से सिनोनिमस यूज हो सकते थे, कौन कौन से एंटोनियम्स यूज हो सकते थे. ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने मांगी थी इस चैप्टर में. नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी सेम यही है, वर्ड फॉर्म्स. आप पहले इस टेक्स्ट को रीड कर लें ताकि आपका भी कोई मैसेज आ जाए, कोई रिप्लाई आ जाए कि कहाँ समझ आ रही है, कहाँ समझ नहीं आ रही. कि क्वेश्चन कर लिया करें. क्लियर है सबका?